Welcome to the Editors Forum. Today we'd be discussing the impact of COVID, especially in the context of Madhya Pradesh and Bhopal. With me is perhaps the senior most journalist of one of the senior most journalists of Central India, Mr. Chandrakant Naidu. Uh, we'd like to have his own experiences, both personal as also the broad overview. Naidu sir, welcome to Editors Forum. Uh, you recently shared that you attended a seminar uh, which talked about building up the confidence of people. Can you shed some light on it? Actually, we had gathered at Omkareshwar uh, under the aegis of Vikas Samvad, which is organizing seminars annually at various places on various subjects. This time, the theme was the health issues and administration. And I felt that it was very apt to be organized at this particular time where there is a lots of confusion about whether the government is really dealing with the corona on its own merit or it's dealing with its political expediency. Actually, I felt that Corona has become, I mean, it could be possibly my perception, and that perception is perhaps built on whatever has happened over the past few months, rather 18 months, I would say. Uh, my own personal experience about Corona was that I was uh, tested positive in July last year, July 2020. And I was asked to get admitted to the hospital. My wife was earlier tested and she was admitted to the hospital. But I didn't really know what was the real reason because I had absolutely no symptoms, no fever, nothing. So I felt that am I really going to hospital for being cured or really to catch corona there? To be very frank, I was very sort of skeptical about the whole idea. And I felt that this could have been the possible case with most common people. And we didn't really know what really was happening because nobody knew. In fact, in the government also, we were not very sure whether everybody was very sure of what was really happening because I was discussing this thing with doctors outside and also in the studios of some television channels. And the doctors themselves were groping the dark. So we didn't really know whether we were really solving the problem or creating more. So we went there, but my experience there was even worse because I felt that the hospital was full of people who were sitting in huddles and playing cards, and we didn't really know whether this was really the solution to the problem because when you go to the hospital, you sometimes feel that you're going there for being cured. This was certainly not the case when we went to the hospital this time, and we felt that we were perhaps inviting trouble. Eventually, on a broader scale, after your personal experience, how did Madhya Pradesh as a whole handle the issue, particularly the way government handled it? What is your view on this? As I said, I mean, there have been so many shifts in the stance. One didn't really know. I mean, so much of shuffling in the stance was sometimes creating doubts in the people's mind also. And my general fear was that you might not perhaps be able to measure the confidence index in the current times. But I would perhaps feel that the kind of public discussion that was taking place on corona was reflecting a lots of confidence of crisis of confidence. कुछ लोगों को मैं देखता था कि उनको समझ में नहीं आता था आखिर हुआ क्या. अब जैसे somebody was saying कि साहब ये कोरोना तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी मुलाजिम हो गया है और जब बुलाए सरकार तो आ जाता है और जब बुलाए फिर सरकार वापस बिना चाहे चला जाता है. And this practically was happening in the elections also because sometimes you would feel that right at the time when the elections are around the corner, yeah, the corona fears are either enhanced or rather tuned down. And in the case of Madhya Pradesh, particularly at the time when the corona, or the sort of thing was knocking at the doors of the state, the home minister was away selling himself to become
minister in the other party's ministry. He was crossing the floor. And that added to the crisis of confidence, basically. Your home minister was not available to answer questions on what was really happening in the state. And there's nothing worse than that could happen to a state which was actually wondering whether there was corona spreading in the state or not. This is basically my feeling is that the government did very little to enhance the confidence level of the public. मिला जुला के देखें तो पिछले 2 साल, अब तो कोरोना के 2 साल होने चले, और मिला जुला के देखें तो काफ़ी कुछ हद तक जो है मुझे लगता है कि सरकार ने और समाज ने दोनों ने मिलकर एक तरह से सही ही मुकाबला किया। क्योंकि आप इसको देखेंगे तो आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। जिस तरह से पूरी दुनिया में तबाही मची, और जो हमसे बहुत विकसित मुल्क हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, जिनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ भी जिस तरह की तबाही उनको झेलनी पड़ी। तो उसको देखते हुए आप भारत को देख लें या मध्य प्रदेश जैसा पिछड़ा प्रदेश भी देख लें, वो भी मुझे लगता है कि वो काफ़ी कुछ संतोषजनक रूप से सरकार ने और समाज ने दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छी तरह से किया सामना। देखिए, कोरोना चाइना में शुरू हुआ, धीरे धीरे WHO की वार्निंग्स आनी शुरू हुई, और 2020 के मार्च के आते आते यहाँ वार्निंग बेल्स बजने लगी थी, और साइमल्टेनियसली यहाँ पर सत्ता परिवर्तन भी हो रहा था। तो एक तरह से एक आवाज़ उठने लगी कि कोरोना और कोविड-19 से हमें जूझना है, कि सत्ता परिवर्तन करना है। वो एक स्टेज थी, थोड़ी सी फेज़ रही, और उस समय लगता था सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। पर कुछ समय बाद सिचुएशन कंट्रोल में आने लग गई, और देखा ये गया कि नोटिफिकेशंस होने लगे, अखबार में खबर छपने लगी, जनता तक मैसेज जाने लगा। पर जनता थोड़ी सी देर में समझ रही थी परिस्थिति की कितनी विकट है, और पुलिस को लाठी भी भांजनी पड़ी, लाठी चार्ज करना पड़ा, और धीरे धीरे जनता को मैसेज जाने लगा। और तब जा कर के एक ऐसी स्थिति आई, उसमें कुछ महीने लग गए कि प्रोटोकॉल्स फॉलो होने लगे, लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया, सैनिटाइज़र दुकानों में, वो एक जिस समय मार्केट मंदी में आने लगा, कर्फ्यू, तो लग रहा था कि जैसे कि किसी भी तरह सैनिटाइज़र ही एक प्रॉफिट का मोटिव बन जाए। तो सैनिटाइज़र बहुत महंगे मिल रहे थे, कहीं कहीं मिल रहे थे, और इस तरह की परिस्थितियाँ बन रही थी। और उस समय ये वाली बात भी आ रही थी कि क्या दवाई का प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। तो उसमें कुछ नाम आ जाते थे कि ये दवा लेनी है, वो लेनी है। फिर दवा की ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो गई, और गवर्नमेंट ने उसको अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया, और यहाँ तक कि ये स्थिति आ गई कि छापा मारा गया अस्पताल में, स्टोर कीपर पकड़ा गया कि वो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी उसकी बहुत ज़्यादा। तो ये इसके जो प्लस माइनसेस हैं, दे हैव कम एज लेसन्स। हमें शिक्षा मिली है परिस्थितियों से। ये पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, और अस्पतालों में बेड्स को लेकर के समस्या हुई, और किसी को ये नहीं पता था कि हमें ट्रीटमेंट का कोर्स क्या करना है, व्हाट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हैज़ टू बी फॉलोड। और वैक्सीनेशन से तो बहुत दूर थे शुरू की स्टेज में, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग फेल इन प्लेस, और वैक्सीनेशन के मार्ग पे चलना शुरू किया। बट उसको करीब 1 साल लग गया, ऑलमोस्ट 1 फुल ईयर, जब हम वैक्सीनेशन के पाथ पे चले। और फिर ऐसा लगने लगा, प्रश्न उठने लगे, इतनी बड़ी आबादी इस देश की, और इसको हम कैसे वैक्सीनेट करेंगे। मैसेज आने लगा कि वेल बाय 31 दिसंबर 2021 तक ये पूरा देश कवर हो जाएगा। अभी उससे हम काफ़ी दूर हैं, बट पॉजिटिव साइड ये है कि हमने, भारत ने जो अचीव किया है वैक्सीनेशन फ्रंट पे, वो रिमार्केबल है। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। देखिए, हम यदि बाकी राज्यों के साथ में मध्य प्रदेश की तुलना करें तो मध्य प्रदेश ने निश्चित रूप से कोरोना के मामले में पिछले 1.5-2 साल से बहुत अलग-अलग स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है। और उसमें न सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पुलिस ने अच्छा काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया। और जिस तरीके से विभीषिका ये थी, उसमें ऐसा अंदाज़ लग रहा था कि काफ़ी संख्या में लोगों की
मौत हो सकती है, क्योंकि पहले चरण में हम सब लोगों को जैसे मालूम है, कोरोना के बारे में मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी और उसकी कोई दवाई भी नहीं थी। अलग-अलग दवाइयों के लिए लोग अलग-अलग भटक रहे थे। पहले चरण में या पहली लहर में पूरे मध्य प्रदेश में हालात थे कि अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी और काफ़ी सारे लोगों ने कुछ बिना कुछ समझने के पहले ही, डॉक्टर की किसी हेल्प लेने के पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दूसरी वेव में निश्चित रूप से मौतें ज़्यादा हुई, लेकिन उस समय तक काफ़ी सारी व्यवस्थाएँ भी ठीक हुई थी और मध्य प्रदेश को हम आज भी कुछ भी कहें, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र या तमिलनाडु या पंजाब या दिल्ली जैसा बहुत प्रगत या बहुत ही आधुनिक राज्य नहीं है और ये जो लैंडलॉक स्टेट है, इसके आसपास से लोगों का आना-जाना काफ़ी चलता रहा। हमारी सीमाएँ जो हैं मध्य प्रदेश की, वो कई राज्यों से लगी हुई है, तो ऐसी स्थिति में बाहर के राज्यों से भी मध्य प्रदेश में लोगों का आना-जाना चलता रहा, जिसको 2 लॉकडाउन के समय में कुछ सीमित करने की चेष्टा सरकार ने ज़रूर की। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ने ओवरऑल ठीक काम किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी काफ़ी 24 घंटे घर से और वल्लभ भवन से वर्चुअल मोड से और बाकी सारी जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम्स थी उनके लिए उनको निर्देशन दिया। बाकी सारे विभागों की टीम्स लगा के जो व्यवस्थापन है जितना ज़्यादा, अब हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि 5,000 मौतें हुई मध्य प्रदेश में तो वो कम हो सकती थी, तो ये तो कभी भी कैसे भी कहा जा सकता है। लेकिन पहली चीज़ तो मैं ये जो द वॉरियर्स हैं कोविड के, इनको आई वुड लाइक टू पे ट्रिब्यूट्स। इन्होंने हर वक्त 24 घंटे आगे आके लाइक सोल्जर्स डिफेंडिंग द बॉर्डर्स इन लोगों ने काम किया है और हर परिस्थिति में काम किया है और कैजुअल्टीज़ भी हुई। सो दे हैव बीन मार्टर्स आल्सो टू द कॉज। तो दिस इज़ द हाई वाटर मार्क। Being a journalist, what is your view as to how press in central India covered the entire issue? Actually, unfortunately, there is a certain element of commercialism that has crept into the system. The journalism is more of a commodity now, in the sense how to sell your story is more important than whether the facts explained to the people have a lots of relevance to him or not. People generally I mean, in our times, I can possibly call myself an old-fashioned person in this respect. We were writing stories, we were told to make them reader-friendly. It's not enough to tell them that 15,000 megawatts of power is being produced. You should be able to tell them as to how many villages it will light up with how many homes. So that's the kind of things we were taught, and we felt that this was not the case in the kind of journalism that we are practicing now. We're not very sure of whether the people really understand what is really happening, and that's actually going to the advantage of the people ruling, because they can always take advantage of the confusion being created among the people. देखिए, हाई पॉइंट्स तो ये रहे कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने भी आगे आकर मुझे ऐसे कुछ लोग मालूम है जिसका मैं नाम भी ले सकता हूँ। एक संतोष सिंह जी एक सरदार हैं, उन्होंने लगातार मध्य प्रदेश अपना ये कोरोना हुआ पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में, वहाँ पर उन्होंने भोपाल में उन्होंने पुलिस के थानों को खाना भेजने का फ्री में काम किया। उन्होंने जो गरीब जो लोग थे जिनको कोई भी सड़क के बाहर नहीं आ रहा था, उन्होंने अपने एमपी नगर के एक छोटे से आउटलेट से करीब उन्होंने 60 दिन तक लगातार सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया। तो इस तरीके से और भी संस्थाएं हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, आपने देखा होगा कि इंदौर में जब हाईवे पे से लोग जा रहे थे तो जो माइग्रेंट लेबर्स थे और जिनके पास चप्पल नहीं थे, जूते नहीं थे, बच्चे थे, उन लोगों को पानी पिलाने का काम किया, उनको जूते, कंबल सब कुछ दिया। ये पिछले साल की बात थी। फिर यदि हम दूसरे हाई पॉइंट की बात करें तो हम निश्चित रूप से कुछ अस्पतालों ने वाकई बहुत अच्छा काम किया। ये बात हमें मालूम है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं थी, उसके बावजूद भी जिस तरीके से मोटिवेशन और जिस तरीके से साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की आवश्यकता थी और जिस तरीके से भगदड़ मची हुई थी, तो डॉक्टर्स लोगों ने बहुत काम किया। और ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिन लोगों ने चाहे वो सरकारी सेवा में हों चाहे निजी सेवा में हों, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो काम किया, सरकार का तो काम ही था ये काम करना, क्योंकि ये अचानक ऐसी विपदा आई थी जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन हम लोगों को ये मालूम है कि WHO ने 31 दिसंबर 2019 को ही इसको वर्ल्ड मेडिकल इमरजेंसी घोषित किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों ने उसको इतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मैं
फरवरी 2020 में मैं अहमदाबाद में था, जब ट्रंप साहब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो वहाँ आए थे क्रिकेट के स्टेडियम के उद्घाटन के लिए। मैं किसी और काम से वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस के लिए था, लेकिन वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा कोरोना के प्रति चिंता नहीं थी। लेकिन फिर भी हम यदि ये देखें पीछे मुड़कर, तो 2020 में जो कोरोना का जो आक्रमण हुआ समाज पर, पूरे देश पर, उसमें तो मौतों की संख्या कम रही, लेकिन फिर भी लोगों ने और सामाजिक संगठनों ने, डॉक्टर्स ने अच्छे काम किए। अब प्रश्न उठता है कि लो पॉइंट्स क्या हैं? लो पॉइंट्स वाकई बहुत ही गंभीर हैं और जिनके प्रति हम सब लोगों को देखने की आवश्यकता है कि जिन डॉक्टर्स को हम देवता मानते हैं, वो ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स पूरे प्रदेश से आई, पूरे देश में से आई कि जब हमारे पास कोरोना की कोई दवाइयाँ ही नहीं थी, फिर भी ट्रीटमेंट के नाम पर लाखों के बिल दिए गए। कई सारे डॉक्टर्स निजी अस्पताल के ज़्यादा, मैं ये कहूँगा, उन लोगों ने अंदर से न कोई कागज़ दिया, न कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया और पैसे पे पैसे मांगते रहे। और जब मोदी जी एक तरफ डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, कैशलेस सोसाइटी की बात करते हैं, हर डॉक्टर ने किसी से भी चेक या ड्राफ्ट से या आरटीजीएस से या क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं लिए और उन्होंने गरीब से गरीब जिसको कहते हैं मरीजों को और दूसरे लोगों को भी लगभग, यदि मैं ये कहूँ कि लूट लिया उनको, मतलब उनको जान के साथ उनकी बचाया नहीं बचाया। कुछ अस्पतालों में तो भोपाल की मुझे निजी जानकारी है कि अंदर के हालात इतने ख़राब थे और जिन डॉक्टरों को हम ये मानते हैं कि वो जीवनदायी मतलब सेवाएं देते हैं, दे आर गॉड्स, बट उन लोगों ने भी लोगों को इस त्रासदी के समय, आपदा के समय भी उन्होंने मानवीयता को दरकिनार करके लोगों से बहुत पैसे लूटे और मुझे इस बात का बहुत दुख है। सरकार को भी ये रिपोर्ट मालूम थी, लेकिन सरकार ने भी इस मामले में कुछ नहीं किया। ये एक बहुत ही लोएस्ट पॉइंट था। दूसरी बात ये है कि पुलिस ने गर्मी के दिनों में भी, हवालदारों ने, बाकी सब लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स पर, चूँकि नाइट कर्फ्यू था, डे लॉन्ग जिसको कहते हैं क्लैम्प डाउन था, लॉकडाउन थे, उस समय जो पुलिस वालों ने भी कुछ लोगों से अलग अलग जगह से रिपोर्ट आई कि मारपीट करी लोगों ने। आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी राज्य में एक कलेक्टर ने तो किसी एक लड़का जो अपनी दादी के लिए दवाई लेने जा रहा था, उसका मोबाइल लेके पटक दिया। और फिर मुख्यमंत्री ने, ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं कई जगहों पर से पुलिस ने कुछ मारपीट करी। तो मैं मानता हूँ कि पुलिस भी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में थी, उनको भी 24 घंटे ड्यूटी करना थी, लोगों को रोकना था, लोग सुन नहीं रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे। आज भी मध्य प्रदेश शासन ने भी कहा, उसके बावजूद भी लोग आज सड़कों पे थूकते हैं, गुटखा खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोरोना को बढ़ाने में बहुत सहायक हुई। लोग मास्क नहीं लगाते हैं और यदि मास्क नहीं लगाते हैं तो निश्चित रूप से वो दूसरे शहर के दूसरे लोगों को, गांव के दूसरे लोगों को भी उससे नुकसान पहुंचाते हैं। अब रही बात यह है कि हमको दूसरी लहर में ये दिख रहा था कि शहरों में हालात बहुत ख़राब है, लेकिन सरकार ने या बाकी लोगों ने भी हमारे मध्य प्रदेश के जो हज़ारों गांव हैं उनकी तरफ कोई बहुत विशेष ध्यान दिया नहीं, ऐसा लगता है। और वहाँ के लोगों को जिस तरीके का एजुकेशन या अवेयरनेस, जिसको जन जागरण कहते हैं, उसके ऊपर काफ़ी कम ध्यान दिया गया। और आज भी कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि ऑक्सीजन की कमी या मेडिकल या अन्य सुविधाओं की कमी के कारण मध्य प्रदेश के ग्रामीण भागों में कितनी मौतें हुई या किस तरीके से लोगों को इस त्रासदी को झेलना पड़ा। तो मुझे लगता है ये दो लो पॉइंट्स हैं कि बहुत ही जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। अगर पहला हाई पॉइंट, जैसा मैंने पिछले जवाब में एंड किया, कि हमने वैक्सीनेशन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और अगर लो पॉइंट है तो लो पॉइंट ये है कि दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग, ऑक्सीजन की कमी और उसके ऑक्सीजन के लिए प्रॉपर स्टेप्स नहीं उठाए गए। ये भी सवाल उठते हैं कि बजटेड हो गया। दिल्ली का केस ले लीजिए, बजट में था, सब कुछ था, पर जब वो सेकंड दौर आया, कोविड का लहर चली, तो देखा कुछ चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई और उसको भी पार पा लिया। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव हैंडल्ड द सिचुएशन। जी, जो हाई पॉइंट्स जितने थे, मुझे लगता है कि वो पहली बार जो है फर्स्ट वेव जब चालू हुआ था और जब लॉकडाउन लगा और सारे माइग्रेटरी लेबर्स भागने चालू हुए, उस समय वो हाई पॉइंट्स थे हमारे समाज के। एक तो समाज में जिस तरह से उठ के खड़ा हुआ, और
यहाँ पे भोपाल में ही आप देख सकते थे कि वो जितने माइग्रेटरी लेबरर्स जा रहे थे, भाग भाग करके अपने घरों पे जा रहे थे, और लोग बिना किसी के कहे हुए सड़कों के किनारे खड़े होकर उन्होंने भोजन का इंतज़ाम किया, उन्होंने जूते दिए उनको, उन्होंने तरह तरह के मतलब चीज़ें की जो उनके बस में आता था, जो उनकी समझ में आता था, उस तरह से काम किया उन्होंने। और इसके लिए किसी को कोई अपील करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे लगता था कि एक सबसे हाई पॉइंट ये था। दूसरा हाई पॉइंट जो है वो मुझे लगता है कि सरकारी तंत्र, वो जिस तरह से उसने काम किया, मतलब नगर निगम हो जहाँ खाना बँट रहा था, वो लोग खाना बांट रहे थे कुछ स्लम एरियाज में जा कर के, और जहाँ पे लॉकडाउन के समय खास करके लोगों को जो ज़रूरत थी उस समय से, और पुलिस वाले उन लोगों ने जिस तरह से काम किया, मतलब महीने महीने भर की ड्यूटी लगातार होती थी उन लोगों की, और बेचारे घर नहीं जा पाते थे। आप फ्रंट लाइन वर्कर्स को छोड़ दें, जो आपके डॉक्टर्स थे, मेडिकल प्रोफेशन के लोग थे, जो कभी घर नहीं जाते थे, और कई लोगों ने तो अपने बाहर ही कमरे बना लिए थे और कमरे पे रहते थे और घर नहीं जाते थे लोग, ये सारे लोग। उन्होंने जिस तरह से काम किया, ये दो जो है एग्जाम्पल हैं, हमारे हाई पॉइंट हैं। और सबसे लो पॉइंट जो है वो सेकेंड वेव में आया, जो दोनों लो पॉइंट्स हैं। एक तो जिस तरह से सरकार ने आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की, जितनी मौतें हुई थी उनको बुरी तरह से छिपाने की कोशिश की, और दिख रहा था जो भोपाल में भी लोग रहते थे, मध्य प्रदेश में लोग रहते थे, वो अपने आसपास के लोगों को मरते हुए देख रहे थे, श्मशान में क्या हालत थी वो देख रहे थे, और फिर सरकार के जो आंकड़े आते थे और उस पर उनका हास्यास्पद बयान आता था ब्यूरोक्रेसी का, वो मुझे लगता है कि सबसे लो पॉइंट था। उनको ज़रूरत नहीं थी ये करने की, अगर वो बता देते। और फिगर्स क्या होते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि 200 लोग नहीं मरे, आपके जो है 500 लोग मर गए, तो फिगर्स ही होते हैं। दैट वुड नॉट हैव मैटर्ड मच, लेकिन उन्होंने उसको छिपाने की कोशिश की। दूसरा लो पॉइंट जो सरकार का था कि डिस्पाइट द फर्स्ट वेव एंड डिस्पाइट एवरीथिंग एंड डिस्पाइट ऑल द रिपोर्ट्स कि साहब ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, मेडिकल फैसिलिटीज़, बेड्स इतने ज़रूरत पड़ेगी, सारी रिपोर्ट सब तरह की थी, और इसके बावजूद सरकार जो है पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड थी। जब सेकेंड वेव आया, लोग ऑक्सीजन के अभाव में तड़प के मरे। मेडिकल फैसिलिटीज़ में सरकार ने अंत में तो ये कह दिया कि साहब अस्पतालों में जगह नहीं है, तो इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला एक्सपर्ट्स ने कि साहब आप घर पे ही इलाज करा लो अपना। अदरवाइज़ आप पहले वेव को याद करें, एक भी पेशेंट निकलता था उसका कोरोना का तो उठा करके उसको ज़बरदस्ती ले जाते थे। पहला पेशेंट यहाँ पे मिला तो ज़बरदस्ती वो जाना नहीं चाहते थे, प्रोफेसर कॉलोनी में रहते हैं, जाना नहीं चाहते थे, और उनको उठा करके उनको और उनकी लड़की को ज़बरदस्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया, एम्स में। और दूसरे वेव में लोग जो है अस्पताल के बिना, बेड्स के बिना, ऑक्सीजन के बिना मरते रहे। ये सबसे लो पॉइंट थे ये हमारे कोरोना काल के, और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो तो कोई और था, मुझे लगता है, केवल मध्य प्रदेश सरकार नहीं। You had a personal experience also about selective lockdown. You had your daughter's wedding, Yeah. and then you had selective implementation of. Yeah, at times I felt that the politicians and the administrators had divided their responsibilities. Some people were supposed to be sort of alarming the people, the others were supposed to be pacifying them. Both at the and same time. Fishing for their votes. In this case, I felt my daughter's own marriage was, my own daughter's marriage was scheduled for April 22nd. And on 20th, I was told that the marriages scheduled for 22nd are not going to be allowed. That was the collector's verbal order. I didn't see any press note, any news coming. It was just as if it was playing to the gallery. And the collector said that there will be no marriages. The next day, the chief minister realized that it was damaging politically, so he came out with a statement that there's going to be no change in the marriages proposed for April 22. The marriages will be held as they were scheduled. The issue was we had applied for 150 persons guests, 150 guests, and we got the permission for that. And on the last day, we were told that we are allowed only to have 20 guests. Not 20 guests from 150. You can see the Difference. see the downfall in my confidence. And what happens, in this case,
The collector's orders were never officially sort of sent through any agency or any press handout. But the Chief Minister's orders also were only verbal. So that actually created more confusion. And the venue where we were supposed to hold this wedding was not even told about this officially. They only called up the administration there and said that you could face fine if you are organizing this wedding. Now, we have already paid for the venue, and we didn't know whether they're going to allow us to hold the program there. It was just one day before the wedding was scheduled. So you can imagine the kind of stress that we might have gone through. So my personal experience was, I mean, I didn't know whom to curse, the government or the administration or the politician. देखिए, भोपाल के अनुभवों को हम मध्य प्रदेश के अनुभव से अलग इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जो हालात इंदौर में थे, जो हालात जबलपुर में, आपको याद होगा कि कोविड की सबसे पहली केस जबलपुर से आई थी। और भोपाल में तो चूँकि सरकार बैठती है, चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, मिनिस्टर्स बैठते हैं, सारे सीनियर नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, तो यहाँ की जो जिसको कहते हैं स्वास्थ्य सुविधा है वो निश्चित रूप से अच्छी होना अपेक्षित था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि भोपाल में हमीदिया ने जिस तरीके से सुंदर व्यवस्थाएं की थी, 3-4 मेरे मित्र IAS ऑफिसर्स को भी कोविड हुआ, वो वहाँ भर्ती हुए, वो उन्होंने निजी अस्पताल में जाने से मना कर दिया, और वहाँ का खाना, वहाँ का ओवरऑल ट्रीटमेंट बाकी सारे लोगों के, सिर्फ IAS अफसरों के लिए नहीं, बाकी सारे लोगों के लिए भी, तो हमीदिया ने एक अच्छा नमूना पेश किया सामने कि सरकारी अस्पताल भी अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या भोपाल में ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता है कि 1250 हो या हमीदिया हो या काटजू अस्पताल हो या दीगर जिला चिकित्सालय हो, जहाँ पर डॉक्टर्स लोग अच्छा काम करके सरकारी अस्पतालों को भी, आपको याद होगा पिछली बार कमलनाथ जी को कोई अंगूठे में इंजरी हो गई थी, ऑपरेशन हुए थे, तो वो हमीदिया गए। तो ये ऐसे अच्छे उदाहरण सभी लोगों को, शिवराज जी को भी प्रस्तुत करना चाहिए कि जब तक बड़े लोग, VIP लोग जब तक अस्पतालों में खुद की ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएंगे, तब तक वो लोगों को जाने के लिए कैसे प्रवृत्त कर सकते हैं। तो भोपाल में ये बात निश्चित रही कि भोपाल में केसेस बहुत ज़्यादा थे और लगातार प्राइवेट अस्पतालों से लाशें, भदभदा और बाकी सब दूर जगह बहुत बड़ी संख्या में जा रही थी। इंदौर में तो और ज़्यादा आंकड़ा बड़ा था, और इंदौर में लोग बताते हैं कि आंकड़ों के साथ खिलवाड़ हुआ, और ये लगभग सभी दूर कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी भोपाल चूँकि ज़्यादा खुला हुआ है, यहाँ पर यदि आप देखें तो बैरागढ़ अलग पड़ता है, नया भोपाल और 4 इमली और अरेरा कॉलोनी थोड़ी सी अलग पड़ती है, पिपलानी और अयोध्या थोड़ा दूर पड़ता है, और पुराना भोपाल तो ये थोड़ा सा फैला शहर है, थोड़ा सा नैसर्गिक रूप से भी यहाँ पर काफ़ी अच्छाई, मतलब पहाड़ हैं और तालाब हैं, तो खुला वातावरण है, थोड़ी हरियाली है, तो इसका भी फ़ायदा भोपाल को हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। निश्चित आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन फिर भी इंदौर इज़ मच मोर क्राउडेड। भोपाल की पॉपुलेशन और भोपाल स्प्रेड आउट होने के कारण यहाँ पर उसकी संख्या या विभिन्नता, उसकी जो सीवियरिटी जिसको बोलते हैं, वो शायद कम होगी। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर कोविड के परिप्रेक्ष्य में हम देखें और भोपाल का अनुभव देखें, तो क्योंकि आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, इस पूरे इन 2 सालों को, इनको आपके पूरी दुनिया में जो हो रहा था, आप ब्राज़ील देख लें, कहीं देख लें, जो पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा था, उसको आपको वहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा कि हम हाउ डू वी फेयर कंपेयर टू दीज कंट्रीज़। तो उसके मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग पीछे नहीं थे, और ठीक ठाक ही हम लोगों का अनुभव रहा है कोविड से डील करने का। देखिए, एक होता है सिचुएशन को सतह पे देखना, पर हमें अगर गहराई से जाना है तो हमको जो हमारा समाज है उसके विभाजित है। एक तो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से विभाजित है, दूसरा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रख के अगर हम देखें तो देखिए, जैसे जब सिचुएशन को कंट्रोल में लाए, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन हो गई, होटल्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस सब बंद हो गया, तो वेलफेयर स्टेट है, अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है वेलफेयर का, दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको राशन भी मिल जाता है। बट व्हाट अबाउट दी जो सिटीजन्स एक बीच में हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, उनको बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ी इसकी। और जैसा मैंने कहा कि जब सब बिज़नेस बंद हो जाता है, तो जब वो शुरू भी होता है तो उसको टाइम लगता है, और
बहुत घर के घर तबाह हुए हैं। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जिसको कहीं किसी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया है, लोगों ने एक्सट्रीम तक स्ट्रेच करके इस पिछले 1 साल में लोग अपने क्रेडिट कार्ड पे जिए हैं। और वो जो क्रेडिट कार्ड पे जिए हैं उसके EMI की मार पड़ रही है लोगों को। उनकी जो क्रेडिट लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है, क्रेडिट कार्ड अब यूज़ नहीं कर सकते, और सब घबराए हुए हैं कि अगर दोबारा वो स्टेज आ गई तो क्या होगा, और पर्टिकुलरली दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये मैं बहुत देख रहा हूँ। और फिर उससे अलग, बिल्कुल अलग हट जाएं, आपने भोपाल का नाम लिया कि यहाँ की स्थिति, तो भोपाल विश्व की भीषणतम त्रासदी से गुजरा 84 में, जब यूनियन कार्बाइड का गैस हादसा हुआ। तो उसमें मैं कहूँगा 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों की आबादी है जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है पूरी तरह से, और बहुत बड़े गैप्स हैं, और जिनको डिस्कस करें तो एक अलग सेशन हो सकता है। पर उसमें यह है कि ICMR ने अपनी रिसर्च बंद कर दी थी बीच में, और जब लोगों को बार बार बीमार होने लगे तो हर व्यक्ति साइकोलॉजिकली ये सोचने लगा कि ये बीमारी हमारा एजिंग प्रोसेस है। पर गिवन अ सिमिलर सिचुएशन जहाँ पर टेम्परेचर और एनवायरनमेंट कंडीशन 2 शहरों में एक जैसी हैं, तो एक कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए थी कि भोपाल ने कितना सफ़र किया है। तो मैं बात कर रहा था वो लाखों की आबादी जो कि स्पेशली गैस अफेक्टेड एरियाज़ जिनको हम कहते हैं, और जिनका इम्यून सिस्टम हाईली कंप्रोमाइज्ड है, वो मोस्ट ससेप्टेबल फॉर कोविड, और गैस विक्टिम्स की डेथ हुई। तो एक कोई सेपरेटली हमने ऐसा पॉलिसी नज़रिया नहीं बनाया कि हम उनको एड्रेस करें। सबको एक ही लाठी से हाँका गया है, ये एक कमजोरी है। Based on your personal experience as also the overall scenario, what kind of trends do you see now going forward into the new year? Actually, overall, if you ask me, I could possibly see this happening through the electronic media more, because the print media can't unprint the stories. So there is still some credibility as far as the newspapers are concerned, but they are influenced by quite a few factors, and the happenings on the electronic media are one of the major factors that can affect their performance. And in the media houses, you can see how selective the people are. They actually, as I said, they run Man Ki Adalat. They announce verdicts first, and then they start hearing on that. So sometimes you don't really know as to what they really are expecting from the audience, and I'm sometimes wondering whether the audience has been able to believe what has been told to them. There's absolutely no logic involved sometimes, and we didn't really know whether their contribution to journalism was not really coming in terms of words, it was coming in terms of decibels most of the time. So it really leaves you, as a conventional journalist, it leaves you confused. मैं on a scale of 10 I would give मीडिया, मैं उनको डिस्टिंक्शन तो दूंगा, क्योंकि चारों तरफ डिसेमिनेशन बहुत परफेक्ट हुआ और पॉलिटिक्स से अलग हटके हुआ, और चारों तरफ आरोप लगता है मीडिया के ऊपर कि मीडिया साइड लेता है दोज इन पावर, सत्ता का साथ, पर इस मामले में ऐसा कहीं नहीं हुआ, और मैं मीडिया को फुल मार्क्स देता हूँ। हाँ। मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छी तरह से काम किया उन्होंने इस कोरोना काल में, ख़ास करके हमारे भोपाल का जो एक अखबार है, जो एक ग्रुप है, भास्कर ग्रुप, और उन्होंने काफ़ी कुछ उसके लिए फिर बाद में उन्होंने सफ़र भी किया उसकी वजह से, जिस तरह से उनके विज्ञापनों पे रोक लगी, विज्ञापन कम हुए, और लेकिन उन्होंने सच को दिखाने से परहेज़ नहीं किया और सरकार के सामने एक आईना रखा। और सिंस दे टुक द लीड, बिकॉज दिस इज़ द लीडिंग न्यूज़पेपर हाउस इन द स्टेट, और बाहर भी दूसरी जगह, कई जगहों पे, कई स्टेट्स में, उसकी वजह से सारी जो हैं, और ऐसे भी मुझे लगता है कि जब इस तरह के संकट आते हैं तो जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया के में काम करने वाले लोग हैं, टेलीविज़न के हों, कहीं भी हों, उन्होंने कभी कोई दिखाने में कभी कोई परहेज़ नहीं किया सरकार के प्रेशर्स के बावजूद। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा
उन्होंने उनका रिस्पॉन्स था इसको डील करने का। देखिए, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से डॉक्टर्स 24 घंटे काम कर रहे थे, पुलिस के लोग काम कर रहे थे, प्रशासन के लोग काम कर रहे थे, वैसे मीडिया पत्रकारों ने भी समय समय पर, इनफैक्ट ऐसा कोई मीडिया नहीं था जिसने अपने यहाँ का कामकाज बंद कर दिया। बहुत कम संख्या में बहुत सारे मीडिया, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक किताब का विमोचन मुख्यमंत्री जी ने किया और विधानसभा के स्पीकर ने किया, जिसमें मध्य प्रदेश के 100 से ज़्यादा पत्रकार जो कोरोना से जिनकी मौत हो गई, उनके ऊपर एक किताब निकली है। तो पत्रकारों ने भी जी जान पर खेलकर कोरोना की रिपोर्टिंग भी जिसको कहते हैं कोविड-19 की रिपोर्टिंग, कोई आसान काम नहीं था। और पहली बार इस तरीके की त्रासदी थी या पैंडेमिक आया था, तो उसकी रिपोर्टिंग के तौर तरीके भी पत्रकारों ने और मीडिया जगत ने इस बार पहली बार सीखे, समझे, और फिर भी उन्होंने मेहनत करके जीवन पे अपने खेल के अस्पतालों में जाते थे। प्रशासन क्या कह रहा है, सरकार क्या कर रही है, लॉकडाउन के दौरान भी वो लोग बाहर जाते थे। ये मालूम है कि यदि छोटा सा घर है पत्रकार का, घर में एक पत्नी है, छोटा बच्चा है, 2 बच्चियां हैं, फिर भी वो दिन भर मोटरसाइकिल पे बाहर जा रहा है, फोटोग्राफर बाहर जा रहा है, और दिन भर वहाँ आने के बाद इंडिया टुडे ने तो एक ऐसी स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि बम्बई के उनके स्टाफर्स किस तरीके से एक कमरे में मच्छरदानी में अंदर सो के, बाकी घर से दूर, क्योंकि ज़्यादा 2-2 कमरों के घरों में लोग किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पत्रकारों ने, मध्य प्रदेश के पत्रकारों ने कोरोना के कवरेज के लिए और जिस तरीके से गतिविधियां गड़बड़ चल रही थी, उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। और मैं निश्चित रूप से उनको साधुवाद दूंगा कि पत्रकारों ने अपनी जान पर खेलकर, ये वॉर लाइक सिचुएशन थी, क्योंकि हर घर वाला ये कहता था कि चाहे उनकी एक वृद्ध माता हो, वो कहती होंगी तुम बाहर मत जाओ, बाहर नहीं जाओगे और रिपोर्टिंग नहीं करोगे, फोटोग्राफर्स का अपना फोटोग्राफ्स नहीं लाएंगे तो अखबार कैसे चलेगा। लेकिन उन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बहुत बेहतर कार्य किया, और उन सब लोगों को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीडिया ने एक उत्कृष्ट भूमिका का निर्वहन किया। करना ही पड़ेगा, जब लोगों के साथ में खड़ा रहो, आप पाठकों के साथ में नहीं खड़े रहोगे तो कैसे होगा। कोरोना महामारी से हमने सबसे बड़ी बात कोई चीज़ सीखी है तो हाउ टू स्टे सैनिटाइज्ड। तो इससे 2 बातें आई हैं, सैनिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सैनिटाइज्ड, जो कि बिल्कुल गायब था। लोग भूल गए थे कि हाइजीन क्या होती है, क्लेanलीनेस क्या होती है, और इस पे बहुत एसर्ट होना शुरू हो गया है। और समाज ने जो बातें सीख ली हैं इन मामलों में, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू स्टे विद देम, एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट दैट दे हैव लर्नड। एंड प्रोटोकॉल्स डे टू डे लाइफ में भी ज़रूरी हैं, ना कि सिर्फ कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। दैट्स द बिगेस्ट मैसेज। हम एक ऐसे मुल्क हैं जो कभी किसी चीज़ से सीखते नहीं हैं, शायद ये हमारी खासियत है। हम भोपाल में बैठे हैं जो विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल त्रासदी से गुजर चुका है। इसके बावजूद अगर आप एक भी फैक्ट्री का, आप उस समय ढेर सारे वायदे किए गए थे, ढेर सारी स्कीम्स आई थी, सोचा गया था कि क्या हो सकता है भोपाल गैस कांड के बाद, और आप कहीं भी जाकर के देख लें जो उस तरह की इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, और आप अगर फैक्ट चेक करें जा कर के, तो वहाँ से वो कोई भी एक स्कीम या उस तरह की कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई। लगभग मैं कहूँगा वही कहानी जो है ये यहाँ पे दोहराई जा रही है। 2 वेव आ गए, तीसरा वेव अब जो है सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत नज़दीक है। इसके बावजूद इस तरह की चौंकाने वाली रिपोर्ट्स आ रही थी कि ऑक्सीजन के जो ताबड़तोड़ उस समय सारा एक जो है इमरजेंसी बेसिस पे ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हॉस्पिटल्स में सब जगह, और सरकार ने काफ़ी पैसा भी उस पर खर्च किया और दिया भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बावजूद वो ऑक्सीजन प्लांट पता चला कि चालू हालत में ही नहीं थे। तो ये इससे हम लगता है कि कभी हमने कोई सीख जो है वो हमको लेनी चाहिए थी, वो हमने कभी ली नहीं सीख, और वी आर प्रॉब्ली इनकैपेबल ऑफ डूइंग दैट एज ए सोसाइटी। कोरोना महामारी से हमने ये सीखा कि हमको एक दूसरे की मदद करना आवश्यक है। हम जिस समाज में रहते हैं, समाज का अर्थ ये है कि हमको सामाजिक एकरूपता रखना चाहिए। हमारा पड़ोसी यदि कष्ट में है तो उसको हमको मदद करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि यदि कोरोना या उस तरीके से भीषण महामारी आती है तो उससे हम अपने को, अपने परिवार को किस तरीके से बचा सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग गाइडलाइंस सरकार ने निकाली थी, लेकिन फिर भी वो गाइडलाइंस का जिन लोगों ने पालन नहीं किया उनको ज़्यादा तकलीफ़ हुई, लेकिन उसके कारण बाकी लोगों को भी तकलीफ़ हुई।
देखिए बहुत ज़रूरी है। मुझे एक वाक़या याद आता है, मैं वो मंत्री जी का नाम नहीं लूँगा। एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक पत्रकार, वो वीकली न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करते थे, तो उन्होंने कहा आपने मेरी खबर पढ़ी? तो मंत्री जी ने जवाब दिया, आप अपने ही लिखते हो, अपने ही पढ़ते हो, अपने ही पढ़ाते हो, कुछ और भी पढ़ते हो। एंड दैट्स, वो मुझे याद रह गया। और आपके इस सवाल पे मैं यही कहूँगा, मेरा एक मैसेज है कि जर्नलिस्ट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए, और उनमें एक हैबिट इनकलकेट की जानी चाहिए उनके एडिटोरियल सुपरवाइजर्स के द्वारा, कि वो अध्ययन भी करें। फॉर एग्जांपल कोविड को लेकर के इस बात आ रही है, व्हाट्सएप पे चलता है कि अमेरिका में ये बात उठी है कि 2 साल में फ्लू का कोई पेशेंट नहीं हुआ, सब कोविड के पेशेंट थे। नाउ अगर हम इसको जांच करेंगे तो हमें, देयर इज़ अ बैकग्राउंडर टू इट। अमेरिका में बहुत बड़ी एक लॉबी है, वो ये कहती है नो वैक्सीन लॉबी, वो बिल्कुल वैक्सीन के खिलाफ है। और वही लॉबी ये काम करती है कि ये सब क्या है, ये सब तो फ्लू है, और फ्लू को हम मैग्नीफाई कर रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट अ साइंटिफिक अप्रोच टू थिंग। एंड में कोविड मेडिकली जब टेस्ट होता है, तो टेस्ट में स्टैब्लिश होता है कि कोविड वायरस क्या है। तो जब कहा जाता है कि इसको कोविड है, दैट मीन्स उसको कोविड वायरस है। तो फ्लू could have been a transient stage, and from flu to a person has gone to COVID. तो ये कहना, गुमराह करना कि जो फ्लू था वही कोविड है, दैट्स नॉट। फ्लू होता है, इम्यून सिस्टम ड्रॉप होता है, कोविड के लिए ससेप्टिबिलिटी बढ़ती है। तो इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग, और अगर व्हाट्सएप पे ऐसी बातें आ भी रही हैं, लोग गुमराह हो रहे हैं, तो मीडिया का रोल हो जाता है कि वहाँ पर आके दे शुड स्टेप इन एंड सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। वो तभी पॉसिबल होगा अगर साइंटिफिक टेम्पर होगा, पढ़ेंगे, लिखेंगे, डिस्कस करेंगे, रैशनैलिटी आएगी। दैट नीड्स टू बी डन। To sum, how do you see post-COVID Madhya Pradesh and Bhopal as compared to pre-COVID? Is it better off, especially compared to the neighboring states and rest of India and the world, or is it worse off? I think the concerns affecting the administrations in other states are also the same. Unfortunately, we have seen the past 7-8 years, or rather more, the entire political path has been sort of paved with elections. So you are most of the time in election mode. So you don't really take administrative decisions on their merit. You take administrative decisions on your political expediency, depending on your political expediency. And you can see the latest contradiction about the Panchayat elections also. In this case, Panchayat elections, yes. But they have decided to leave the issue hanging, so that they have, like in the case of Madhya Pradesh, the Panchayat elections are supposed to be held with a particular enhanced quota for OBCs. They just want to send the message to the public that they are concerned about the OBCs, but they really don't want to take the responsibility. They want to leave it to the court. Okay. And the court, if it doesn't decide about it, they are better off, in the sense that they don't really have to own up the responsibility. The onus lies on the court's verdict or the people's mind. So, and that's happening to the UP elections also. It seems that they are not very sure of being able to win the election, winning the elections. So they might possibly be trying to get some people to talk about the possible concerns over Corona, or the Omicron as they call it now, the latest variant. And that's very interestingly left vaguely pervading in the atmosphere. Whether it's true or not, nobody knows. Everybody has a contradictory statement to make about it. One says that it's not going to be really very harmful. The other person says that, well, it's going to be, it might have a lasting effect also. So Madhya Pradesh, in a way, is slightly better off, but that's today. One doesn't really know about tomorrow or the day after. So you don't really know whether the state government, and it's actually very interesting, as I said earlier also, that the administration has one thing to say about the same thing, the politicians have the other things to say about the same thing. So you don't really know which one to believe. So that crisis of confidence is what I have been talking about all the time.
and you're not better off in Madhya Pradesh even today after 18 months. देखिए कि कोरोना का जो एक जो नतीजा सामने दिखा या कोरोना के बारे में जो विभिन्न अनुभव पिछले 1.5-2 सालों में पूरे देश के और विदेश से भी आए, बड़े बड़े लोगों को कोरोना हुआ, तो कैसे हुआ? तो इसकी जब जड़ में हम लोग गए, एक पत्रकार के नाते हम लोगों का ये काम है, तो पता लगा कि लिफ्ट के उपयोग से लोगों ने वो किया। तो कहीं लिफ्ट का बटन किसी कर्मचारी ने दबाया, किसी ड्राइवर ने दबाया, उसके पास ध्यान नहीं था, उसको कोरोना था लेकिन उसने चेकअप नहीं कराया, तो लोगों को हो गया। तो सीढ़ियों से जाना शुरू किया लोगों ने, लिफ्ट का उपयोग वो किया, लेकिन यदि 6ठी 8वीं 9वीं मंजिल पर कोई रहता हो तो उसके लिफ्ट के बिना जा नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अलग अलग उदाहरण ऐसे सामने आए जिसमें से लोगों को ये सीख मिली कि हमको अपना स्वयं का बचाव कैसे करना चाहिए। लेकिन फिर भी भारत में जिस तरीके से इलिटरेसी है, जिसको कहते हैं अशिक्षा का वातावरण है, उसमें हर व्यक्ति को हर समय हर चीज़ को समझाया जाना बहुत मुश्किल है। इसमें टेलीविज़न की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि टेलीविज़न के ज़रिए लोग देखते हैं तो चीज़ों को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि कोविड के बाद में जो जीने की जो जिसको कहते हैं द वे ऑफ लाइफ, इट विल चेंज। निश्चित रूप से हम लोगों को भी बदलाव करना पड़ेगा। और यदि आपने स्मार्ट सिटी और भोपाल मास्टर प्लान की बात करी है, तो भोपाल मास्टर प्लान में मैंने स्वयं ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। तो भोपाल मास्टर प्लान का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भोपाल की जो नैसर्गिक संपत्ति है, जो इंदौर में नहीं पाई जाती है, जो रायपुर में नहीं पाई जाती, भोपाल में कई सारे तालाब है, उसमें से एक रामसर साइट है। भोपाल में आपके हिलॉक्स है, मतलब पहाड़ियाँ हैं। भोपाल खुला खुला है, भोपाल में हरियाली काफ़ी है। स्मार्ट सिटी पहली बार जब एक जगह पर प्रस्तावित थी तुलसी नगर शिवाजी नगर में, तो मिसेस निर्मला बोच, अजय कटारिया, मैं, बाकी कुछ लोगों ने मिलके उसमें एक ट्री वॉक किया और हमने कहा कि ये इतना अच्छा क्षेत्र है, यहाँ पर स्मार्ट सिटी लाकर तहस नहस नहीं करे। तो स्मार्ट सिटी का जो अनुभव पूरे देश में रहा है वो यही रहा है कि स्मार्ट सिटी हैज़ बीन एनीथिंग बट स्मार्ट। तो नए सिटी पे जो उन्होंने अभी भोपाल में जो बनाया है वो इतने कंजस्टेड वो बना दिए, और पुराने जो मकान थे तो तोड़ के आदि फिर वहाँ पर बहुत सारे पेड़ काट दिए उन लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि यदि स्मार्ट सिटी, अर्बन प्लानिंग, भोपाल मास्टर प्लान में एक सड़क प्रस्तावित है जो तालाब में से जाने की संभावना है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग लग रहे हैं। तो हरियाली का महत्व कोरोना के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को समझ में आया है। लेकिन फिर भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ अर्बन प्लानर्स ऐसे हैं, या कुछ कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं। अब आपको मालूम है भोपाल में बाग आता है एक जगह पर, बहुत बड़ा एरिया है वो, जिसको कहते हैं टाइगर बियरिंग एरिया। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने घर बना दिए। उनको किसने परमिशन दी? वहाँ पर स्कूल्स बना लिए, वहाँ पर कॉलेजेस बना लिए, यूनिवर्सिटीज़ बना ली, उनको किसने परमिशन दी? तो भोपाल में नदी भी जा रही है, भोपाल में तालाब भी बहुत सारे हैं, भोपाल में जंगल का एरिया है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। अब SCPA बंद होने के बाद में पता लग रहा है कि भोपाल के जो बगीचे थे उनके हालात ख़राब हो रहे हैं। तो जब तक हम इन सारी चीज़ों को देखें नहीं, और सरकार जब तक इसके बारे में रोज़, मुख्यमंत्री जी रोज़ एक पौधा लगा रहे हैं, मान लिया अच्छी बात है, और पूरे देश में कोई नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि बाकी सारे बगीचे और बाकी सारे जंगलों को हम उजाड़ दें। तो मूल बात यह है कि भोपाल का मास्टर प्लान, भोपाल की स्मार्ट सिटी अपने आप में अलग विषय, इस पर कभी और बात करूंगा मैं। लेकिन जब तक हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को हम तक संभाल कर नहीं रखेंगे, तब तक भोपाल की सुंदरता को, कुछ दिनों में लगातार रिपोर्ट्स आ रही है कि भोपाल का जो रामसर साइट, मतलब जो बड़ा तालाब है, उसके आसपास के कैचमेंट एरिया में बहुत एनक्रोचमेंट हो रहा है। कौन कर रहा है और उसको कौन होने दे रहा है? तो इसके ऊपर भी प्रश्न उठाना ज़रूरी है। बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंदौर में, भोपाल में, कौन सी सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। तो क्लिनलीनेस पे तो काम हो रहा है, पर फिर भी वो छोड़ दिया जाता है कि सिविक अथॉरिटीज़ के ऊपर। पर कोविड, इसकी मार इंडिविजुअल्स को पड़ी है, और जैसा मैंने कहा था कि सैनिटी आ गई है। तो मुझे लगता है कि एक सिचुएशन आनी चाहिए जिसमें कोविड से बचने के लिए तो हमने मास्क पहन लिया, हाथ सैनिटाइज कर लिए, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, पर अगर घर के पास कचरा है, बैक्टीरिया है, और हम दूसरे इन्फेक्शन लेते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी ड्रॉप होती है, तो फिर कोविड जैसी समस्या के लिए ससेप्टिबिलिटी बढ़ती है। तो एक नया मध्य प्रदेश मेरे ख्याल से नीट, क्लीन, सेन और अवेकेंड सिटीजनरी का प्रदेश होगा। मेरी मुख्य सलाह एक ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कंटिंजेंसी मैकेनिज़्म होना चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, हमारे पास इंस्टीट्यूट है, किया जाता है, पर नी जर्क अप्रोच से काम होता है। हमारे पास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है,
हमारे पास नेशनल लॉज हैं, एयर लॉज हैं, वाटर के लॉज हैं, पर अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर के आसपास देख लें तो वहीं पर हमें दिखेंगे कि फ्लाउटिंग ऑफ द एयर लॉ एंड द वाटर लॉ। तो इसी प्रकार कोविड जैसी सिचुएशन से जो हम गुजरे हैं, तो नए मध्य प्रदेश में द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू टाइटन इट्स बेल्ट, पुल अप इट्स सॉक्स एंड सिट स्ट्रेट एंड ऑलवेज बी ऑन अलर्ट। दैट्स इम्पॉर्टेंट, जो मिसिंग देखा मैंने काफ़ी हद तक। और सुझाव के बतौर सिर्फ इतना है कि मोर देन द कोविड वॉरियर्स, इट इज़ द सिटीजनरी, जो जनता है, उसको कोऑर्डिनेशन के साथ, परिस्थिति को समझ करके और डिसिप्लिन के साथ अस्पतालों की फैसिलिटीज़ यूज़ करनी चाहिए। कई केसेस आए जहाँ पर मारपीट की नौबत आ जाती थी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती थी, वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। दैट्स अ लो पॉइंट। और मैं सोचता हूँ कि सिटीजन्स का जिम्मेदारी है कि आरोप लगाना और वहीं पनिश कर देना, तो मेरे ख्याल से ये तो बारबैरिक है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक तो मीडिया को मुझे लगता है कि बदलाव की ये ज़रूरत है कि पूरी मीडिया को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। जिन लोगों पे सबसे ज़्यादा आपदा आई इस कोरोना काल के समय, उनमें से मीडिया एक है। वी लॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स। ये CMI जो होता है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है, उसकी रिपोर्ट्स आई हैं और उसके मुताबिक मतलब करीब 80% जॉब जो हैं, कोरोना काल के पहले के फिगर्स उन्होंने दिए हैं और उसके बाद के फिगर्स दिए हैं, 80% जॉब्स मीडिया हाउसेज में ख़त्म हो गए। उसमें जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन हैं, अखबार में काम करने वाले दूसरे लोग हैं, और जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो पूरा है। जो अखबार में, कहीं भी टेलीविज़न में, मैनेजमेंट में लोग जो काम करते हैं, सारे जॉब्स ख़त्म हुए और उन जॉब्स की कोई भरपाई नहीं है और उसमें कोई बात करने वाला नहीं है। और उसको लेकर के जितने लेबर लॉज थे, कभी कोई फॉलो नहीं होते हैं और उसको लेकर के कहीं बात हुई नहीं। और ये मीडिया हाउसेस के जितने, तो मुझे लगता है कि एक साथ हमारे लिए सबसे बड़ी सबक की बात है एज जर्नलिस्ट कि एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। भोपाल, ये भास्कर का ही मामला ले लें। भास्कर जो है, उसने सच दिखाने की कोशिश की, सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की और अपने पत्रकारीय कर्तव्य का निर्वहन किया। लेकिन जब उनके ऊपर इस तरह का संकट आया और जिस तरह से सरकार ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो मुझे नहीं याद आता है कि कहीं कोई मीडिया के दूसरे लोग जो हैं वो साथ में आकर के खड़े हुए हों। उस एकजुटता की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया जो है इसका एक बहुत बड़ा शिकार रहा है कोरोना का। मुझे तो लगता है कि कम से कम एक ऐसा मध्य प्रदेश का सपना हमें देखना चाहिए जहां मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो कम से कम ठीक ठाक हों। लेकिन उसको आप देखेंगे तो जो चौंकाने वाली रिपोर्ट्स ही सामने आएंगी। हेल्थ नीति आयोग की रिपोर्ट्स वगैरह जो आ रही हैं और जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, वो हम पाएंगे कि हम बहुत ही नीचे हैं और जिसकी उम्मीद हम नहीं करते थे। हो सकता है हम जो है साउथ के जितने स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा रहा है और हम हमेशा से कमज़ोर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको थोड़ा इम्प्रूव करेगी, क्योंकि ये सरकार के ही बस की बात है, ये कोई और नहीं कर सकता है। मैं तो इसमें एक ही सलाह देना चाहूँगा इसको लेकर के कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा सरकार ने दो चीज़ों पे जो इसके पहले, कोरोना के पहले जो है खर्च कम किया था बजट में। एक तो एजुकेशन का सेक्टर है और दूसरा जो है वो हेल्थ का सेक्टर है, और ये सबसे अहम सेक्टर्स हैं हमारे लिए। सोशल इंडाइसेस में हम बहुत नीचे पिछड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि सरकार को इसमें बहुत ही ध्यान देने की एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में ज़रूरत है। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है, आप इसका मामला देख लें,
कोरोना के लिए टीकों का, जो पूरे नहीं हुए हैं अभी भी, और लोग नहीं जाते हैं कोरोना के सेंटर्स पे, अवेलेबिलिटी के बावजूद टीका नहीं लगवा रहे हैं। उसकी एक वजह मैं यही पाता हूँ कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन है। आप दूसरे स्टेट्स को देख लें, केरल में देख लें, कहीं भी देख लें, दूसरी जगह पे, हिमाचल में देख लें, जहाँ पे कि सोशल इंडाइसिस बेहतर हैं, वहाँ पे 100% टीकाकरण हो गया हिमाचल में। That's about it for this edition. We'll be there with the next edition on Panchayat and local bodies elections. Till then, happy viewing.